Hello students, I am your science teacher Preeti ma'am and I am going to teach you chapter number 4, metals and non-metals. And today we are going to start with metals and non-metals. And the topics that I am going to cover in this chapter are about metals and the ores, the physical properties of metals and non-metals. Only these many topics we are going to cover up today. So, what are minerals and ores? You know students, elements they can be broadly classified into metals and non-metals, and most of the elements on the earth they are metals. Only 17 are non-metals. Gold, silver, platinum, mercury, they are some of the examples of the metals, whereas hydrogen, carbon, nitrogen, oxygen, sulfur, they are the examples of non-metals. Elements, they occur in free states. Elements, they occur in free state. What is exactly the meaning of free state? Free state का मतलब होता है कि they are not found in combined forms. वो किसी के साथ combine होते नहीं हैं. Yeah, they do not mix with each other. There is no reaction between them. And they are found in free state in the earth's crust. And they are called as the minerals. They are present as compounds also. So, such substances that occur naturally in the earth's crust, it is called as minerals. जो naturally मिलते हैं उसको हम कहते हैं as minerals. They have a fixed structure and chemical composition. उनका structure, उनका shape fix होता है और वो exactly कौन से combination में बने हैं, कौन से composition में बने हैं, उसमें कौन कौन से elements है वो fix ही होता है. And minerals, they are found in rocks में मिलते हैं, and these rocks are mined and the elements required are extracted from it. इसको mining किया जाता है और जो भी elements की ज़रूरत है वो उसमें से निकाला जाता है. So rock formation that contain large amounts of elements that can be extracted profitably, it is called as ores. Rock formation that contain large amounts of elements, जिसमें elements का proportion बहुत सारा होता है और अगर हम उसको निकालते हैं तो हमको हमेशा profit होता है, and that is called as the ores. Some of the ores they are given over here. So aluminium, it is a metal, and from which ore it is extracted? It is extracted from bauxite. The molecular formula or the formula of the ore, it is given as Al2O3 and 2H2O. Copper, it is given as chalcopyrite and chalcocite. Chalcopyrite's formula is CuFeS2 and chalcocite's formula is Cu2S. Iron, we get it from hematite and magnetite. So hematite's formula is Fe2O3 and magnetite's is Fe3O4. Lead we obtain from galena and its formula is PbS. Magnesium we get it from magnesite and its formula is MgCO3, and dolomite whose formula is CaMgCO3 whole twice. Mercury we obtain from cinnabar and its formula is HgS, and zinc we obtain from smithsonite ZnCO3 and zinc blend, it is ZnS. So here are some of the ores which are given over here. This is chalcocite, and you know this ore chalcocite, which metal do we get? Yes, exactly, we get copper from it. Magnetite, it is the ore, and from this ore we get iron.
This is hematite, and from this also we obtain the iron, and this is bauxite, and from bauxite we get aluminium. So these were some of the ores. Now let us look at some of the properties of metals and non-metals. Let's discuss about some of the physical properties. So all metals are solid at room temperature. रूम टेम्परेचर पर सारे सॉलिड ही होते हैं मेटल्स जो भी है वो, मगर एक्सेप्शन में हम ऐसे ले सकते हैं कि मर्क्यूरी इज़ इन लिक्विड फॉर्म। एक मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो हमको लिक्विड फॉर्म में मिलता है। एट रूम टेम्परेचर्स नॉन मेटल्स, जो रूम टेम्परेचर पर नॉन मेटल्स, दे आर प्रेजेंट एज आइदर सॉलिड, सॉलिड में अगर होते हैं, सॉलिड में भी होते हैं। सॉलिड में कौन कौन से हमारे नॉन मेटल्स है, तो सल्फर है, कॉपर है, फॉस्फोरस है, आयोडीन है, ये सारे हमारे जो मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, दे आर इन सॉलिड फॉर्म। लिक्विड फॉर्म में हमको ब्रोमाइन मिलता है, और गैशियस फॉर्म में हमको मिलता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऐसे बहुत सारे हमको नॉन मेटल्स जो हमको गैशियस फॉर्म में मिलता है। तो हमने ये पाया कि मेटल्स होता है वो जनरली सॉलिड स्टेट में होता है। एक एक्सेप्शन हमारा है मर्क्यूरी जो लिक्विड स्टेट में होता है, मगर नॉन मेटल्स तीन स्टेट में हमको पाए जाते हैं। सॉलिड में भी पाया जाता है, लिक्विड में भी पाया जाता है, और गैशियस फॉर्म में भी पाया जाता है। Let's discuss about the second property, physical property of metals and non-metals, and that is the hardness. Most metals they are hard. Metals होते हैं वो ज़्यादातर हार्ड ही होते हैं। They cannot be cut easily and do not break under pressure. उसको हम कट नहीं कर सकते, उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, प्रेशर डाल के भी हम उसको ब्रेक नहीं कर सकते। मगर मेटल्स जैसे कि लिथियम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, वो एक सॉफ्ट होता है, और इतने सॉफ्ट होते हैं कि हम उसको नाइफ से उसको कट कर सकते हैं। मगर नॉन मेटल्स है, दे आर नॉट हार्ड, वो हार्ड नहीं होते हैं। तो कैसे होते हैं? दे आर सॉफ्ट एंड ब्रिटल, एकदम सॉफ्ट होते हैं, टूट जाते हैं। ब्रिटल का मतलब वो इजीली उसके छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं एज ब्रिटल। तो नॉन मेटल्स होते हैं, दे आर सॉफ्ट एंड ब्रिटल, और दे क्रम्बल इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन देम। अगर थोड़ा सा भी प्रेशर आया तो एकदम छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। मगर डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो हार्डेस्ट मिनरल है, और डायमंड है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बन। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अबाउट द टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ हमने ये पढ़ा था लास्ट चैप्टर में कि टेंसाइल स्ट्रेंथ इट इज़ द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल इट टू ए पॉइंट वेयर इट ब्रेक्स। इतना खींचो कि वो टूट जाए, तो उसको हम कहते हैं एज टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो जो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल, इट इज़ द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल इट टू ए पॉइंट वेयर इट ब्रेक्स। एंड मेटल्स होते हैं, उसका बहुत अच्छा टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो बहुत प्रेशर डालेंगे तो ही वो टूटता है, नहीं तो इट इज़ नॉट इजीली ब्रेकेबल। ये मतलब कह सकते हैं कि दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, दैट्स व्हाई दे कैन बी यूज्ड टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स विदाउट ब्रेकिंग। whereas non-metals have low tensile strength, उनका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही लो होता है, इसलिए वो टूट जाते हैं जल्दी, दे स्नैप अंडर द लोड। और एक फिजिकल प्रॉपर्टी हमारी, दैट इज़ द लस्टर। लस्टर मतलब कितना चमकता है वो। एंड मेटल्स दे आर नॉर्मली लस्टरस, दे आर शाइनी बाय नेचर, चमकते हैं, दे आर शाइनी बाय नेचर। Old metal objects can be polished to get their shine back.
but non-metals, if we consider, then non-metals, they are not lustrous, they are not shiny. एक्सेप्शन इसमें भी है, आयोडीन, ग्राफाइट, ऐसे दो हमारे नॉन मेटल से जो लस्टरियस है, जो शाइनी हुए है, बाकी नहीं है। यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है, ये गोल्ड है, गोल्ड इज़ नॉन मेटल, sorry, metal, silver is also a metal, and copper is also a metal. So these are lustrous items which is given over here. About malleability. If I want to teach you about malleability, malleability का मतलब क्या है, तो एक काम करते हैं, हम कोल ले लेते हैं, कोयला ले लेते हैं और छोटा सा टुकड़ा एक कॉपर वायर का ले लेते हैं, दोनों हम साइड बाय साइड रखते हैं, and if we place the coal and copper wire on a hard surface, और उसको ज़ोर से हैमर से हिट करते हैं, तो हम कुछ ऑब्जर्व करते हैं। कोल को अगर हम कोयले को हम मारेंगे हैमर से, तो कोल है वो एकदम छोटे 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 पीसेस में वो कट हो जाता है। मगर अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे आयरन को तो और कॉपर वायर को, तो उसको इतना कुछ होता नहीं है, वो फ्लैट हो जाता है। कॉपर वायर जो होता है वो थोड़ा फ्लैट हो जाता है, मगर कोल है वो इट विल बिकम इनटू पाउडर। सो वी कैन से दैट द पीस ऑफ कोल इज क्रश्ड इनटू पाउडर, whereas the copper wire becomes flat. So the property of a material due to which it can be hammered or pressed into sheets, जिसको हैमर करके उसको शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है, उसको हम कहते हैं एज malleability. And generally metals, they are malleables, they can be pressed into sheets, whereas non-metals, they are not malleable. अगर हम उसको मारते हैं तो it can be given a perfect shape or it can be turned into flat sheets. About the next physical property is its ductility. Students, you must have seen wires made of copper and aluminum. वायर्स तो देखे ही होंगे, कॉपर के देखे होंगे, एल्यूमिनियम के वायर्स देखे होंगे. So the property of a material due to which it can be pulled into wires, जिससे हम वायर्स बना सकते हैं, those are called as ductility. And metals can be made into wires. मेटल से उसको हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, मगर नॉन मेटल्स होते हैं उसको हम वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर आपको देख सकते हो, यहाँ पर कॉपर एल्यूमिनियम वायर है, उसको हमने चेंज किया है, तो दिस इज़ अ डक्टिलिटी। एक प्रॉपर्टी मेटल्स की होती है डक्टिलिटी करके। और ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसको हम शीट में कन्वर्ट किया है, और शीट में अगर कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम कहते हैं एज मैलेबिलिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द सोनोरिटी। मेटल्स दे मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन हिट। मारते हैं तो आवाज़ आती है टन 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 करके। So that ringing sound, noise or sound, when it is hit, it is called as sonority. So that property is called as sonority. And metals, they are sonorous. और non metals होते हैं, they are not sonorous. उसमें से कोई आवाज़ नहीं आती. And you might be knowing, students, that gold is the most malleable material. And it can be beaten so thin, उसको इतना पतला किया जाता है, इतना पतला हम कर सकते हैं कि एक पाइल ऑफ शीट, 1 सेंटीमीटर थिक एक शीट है, उसमें से हम नियरली 1 लाख से भी ज़्यादा, 1 सेंटीमीटर थिक हमारा गोल्ड है, तो उसमें से हम 10,000 से भी ज़्यादा, 1 लाख से भी ज़्यादा हम शीट्स उसमें से बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इट्स कंडक्टिविटी। कंडक्ट कैसे करता है करके। यू माइट हैव सीन इलेक्ट्रिसिटी बीइंग कंडक्टेड
है ना, बैटरीज में, और उसमें आपने देखा होगा कि जो भी उसमें वायर्स और वो होते हैं वो सारे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. So you will find that except coal, all the other metals, they conduct electricity. So we can say that metals, they are good conductors of heat and electricity. मगर नॉन मेटल्स होते हैं, दे आर द पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मगर इसमें भी एक ऑप्शन आ जाता है, एक्सेप्शन आ जाता है. क्या एक्सेप्शन आता है? ग्राफाइट है, इट इज़ नॉट. Okay, because graphite, it is a good conductor of electricity. So we can say that metals are good conductors of heat also, and that is why they are used to make vessels बनाने के लिए काम आते हैं. And silver, it is an excellent conductor, which is followed by copper or aluminium comes the next. तो सिल्वर बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है, और उसके बाद कॉपर की कंडक्टिविटी आती है, और उसके बाद एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी आती है. मतलब सबकी कंडक्टिविटी अलग अलग होती है. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट वन मोर फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट इज़ द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. And students, most metals have high melting and boiling points. They have high melting and boiling points. सबके बहुत सारे ऐसे metals हैं जिसके बहुत अच्छे, बहुत ही ज़्यादा melting points होते हैं, ज़्यादा उनका melting point होता है. However, metals like sodium is there, potassium is there, mercury is there. They have low melting points and boiling points also. नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. मगर इसमें भी एक्सेप्शन है कि ग्राफाइट और डायमंड, ये दो ऐसे नॉन मेटल्स है विच आर द फॉर्म्स ऑफ कार्बन. दे हैव द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एनी एलिमेंट. सारे एलिमेंट से सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट ग्राफाइट और डायमंड का होता है, वो जल्दी से मेल्ट नहीं होता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डेंसिटी. उसकी डेंसिटी कैसी है? सो मोस्ट मेटल्स दे हैव हायर डेंसिटीज. मेटल्स, बहुत सारे मेटल्स की हायर डेंसिटी होती है दैन द नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स की इतनी डेंसिटी नहीं होती है. लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है. They are the only metals that have densities lower than that of water. वाटर से भी उनकी डेंसिटी कम होती है. इसीलिए लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये पानी में हम डालते हैं तो वो तैरते हैं. भले ही मेटल हो बट दे स्टिल फ्लोट ऑन वाटर. So here we come to the end of today's lecture. So students, if you have understood, then please do like, share and subscribe for my channel and answer these questions accordingly. So here I end up over here. So bye bye students.